I am Syed Rashid. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 6 mathematics, okay, chapter number 13 practical geometry, and in this we will going to learn something about the exercise number 13.3. As you can see already question I wrote on the board, and the question is draw a line segment PQ is equals to 5.8 centimeters and construct it perpendicular bisector using roller and compass. So what is roller and what is compass, all the student and viewers? Here roller is nothing but you can see one device in the geometry box. I want to show you, this is the ruler, okay. Have you saw? Now I am changing the image like compass. What is compass? You can see the image of compass here, okay. This compass and the image before this is nothing but roller. Now I am removing the image from here, okay. Now coming to the solution. First we need to draw one line segment, okay. The line segment is nothing but I am drawing a line segment PQ which is equals to 5.8 centimeter. Now we have to give the name as P and Q. After that, set the compass as radius more than half of the length. That means here the length is 5.8, means more than half of length is here. We can take like we can say like we can take, if the half of 5.8, what is the half of 5.8? The half of 5.8 is nothing but 2 2s are 4, 2 9s are 2.9. So more than half means we can take nearly 4 centimeters, isn't it? 4 or 3.5 centimeter we can take, and we need to now with P as the center, draw circle below and above, like we need to put one point. We can say like here I can put one point like M, N, whatever you want, okay. Here I am giving the name is nothing but M, point M. So from P I need to draw one arc, okay, like this, isn't it? After that what I have to do, same from the Q I need to draw one more arc here, okay. Now I need to put the line here. Your perpendicular bisector is ready, isn't it? For that I am just writing the construction steps. So now the time to see the construction step. CONSTRUCTION, construction, STEPS, steps. So for construction steps we have first step 1, okay, STEP. Step 1, draw a line segment, isn't it? PQ is equals to 5.8 centimeters, okay. After that step 2, okay, set the compass, SET, set the compass as radius more than half of length PQ, say nearly 4 centimeter, okay. Then step 3, STEP, step 3. For step 3 with you need to just put with the center of P, okay, with center of P, like draw arc, DRAW, draw arc like on M, nearly M. You need to draw the arc near the M, you can see. Now step 4, with center of Q, draw another arc, DRAW, draw. Now you need to clearly write this thing, another arc, ARC. Now draw another arc. Now join like M. Now like you can put one more point here, like here M means here, and you can put, and same thing you can do, you need to draw 2 arcs, okay, and join the M and you will get your perpendicular bisector. So for that I am writing step 5, okay. Step 5, repeat, REPEAT, repeat like STEP. Step 3, 4 with point N. That means we need to put the
compass on P and we need to draw one arc here. Again we need to put the compass on Q and we need to draw arc here. Now step 6, last but not least. In step 6, join, join and we get required required. What we have to get? Required perpendicular bisector. We can copy from the question itself. Okay, perpendicular bisector, isn't it? So this is our answer. Now coming to the explanation part in Hindi. जैसा कि आप जानते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैं सैयद राशिद हूँ। आज हम हमारी क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज नंबर 13.3 में हम जा रहे थे। हमको एक ड्राइंग करना है, कंस्ट्रक्शन करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग रोलर एंड कंपास और रोलर का यूज़ करते हुए। स्टार्टिंग में मैंने इमेज फ्लैश करा दिया था कि रोलर क्या रहता है, कंपास क्या रहता है। तो हम उसके साथ साथ मैंने पूरा इंग्लिश में किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं बताया था। हिंदी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले PQ एक लाइन 5.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेट द कंपास, यानी कि कंपास को इस तरीके से सेट कीजिए जो इसकी PQ की मोर देन हाफ लेंथ रहना, यानी हाफ से ज़्यादा। तो ये 5.8 है तो से यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। ठीक है, लेके क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? विथ सेंटर ऑफ P ड्रॉ एन आर्क ऑन नियर M। एक पॉइंट बना लेंगे हम पहले यहाँ पे M, तो यहाँ से सेंटर से ऐसा मार्क करेंगे हम। ठीक है, नियरली एक यानी कि पैटर्न जैसा बनता है। ठीक है, तो M के करीब करीब एक आर्क फॉर्म करेंगे या फिर बनाएंगे। उसके बाद स्टेप 4 में अगेन Q पे हम रखेंगे, रख के और एक आर्क फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 विथ पॉइंट N, यानी कि फिर हम P पे रखेंगे नीचे की तरफ, यानी उसकी एक इमेज जैसा फॉर्म कर रहे हैं या फिर उसका एक जी हाँ इमेज के जैसा, M का इमेज जैसा हम बना रहे हैं। P पे से ऐसा मार्क कर लेंगे, फिर Q से मार्क करके ज्वाइन MN जैसा ज्वाइन करें, वी गेट अ रिक्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन था। इसको लेकर सिमिलर और एक हमारे पास यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स है 13.3 में, आप वो कर सकते हैं। नाउ 13.4 का एक छोटा सा हम प्रॉब्लम करेंगे, हमारा चैप्टर ख़त्म होने पे जा रहा है। ओके, होप यू हैव कॉपीड द थिंग विच आई रोट ऑन द बोर्ड। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन एंड इन द स्क्रीन you can find the construction of angle using protector. So first you need to draw an ray. Here it is saying that let us construct angle PQR is equals to 40 degree. मतलब क्या है इसका, एक एंगल PQR है जो 40 डिग्री का हम बना रहे हैं। तो किस तरीके से बनाना चाहिए। स्टेप 1, ड्रॉ ए रे QR ऑफ एनी लेंथ, कौन सी भी लेंथ की आप एक QR रे बना लीजिए। प्लेस द सेंटर point of the protector at Q and the line aligned with the QR, यानी कि जिस तरीके से आपको डायग्राम में बताया गया है उस तरीके से आपको ये प्रोटेक्टर को रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मेक अ पॉइंट एट 40 डिग्री, 40 डिग्री एंगल पे आप एक पॉइंट बनाइए। ज्वाइन QP को आपको ज्वाइन करना है। वी विल गेट लाइक रिक्वायर्ड एंगल RPQ इज एन रिक्वायर्ड एंगल। यहाँ पे RPQ बोल सकते हैं आप, PQR बोल सकते हैं, QRP बोल सकते हैं एंगल को। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा। नेक्स्ट वाला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन या कॉपी ऑफ एंगल लाइक अननोन मेजर, यानी कि अगर अपने को कोई एक एंगल है उसकी सिर्फ कॉपी बनाना है और उसका मेजरमेंट हमको मालूम नहीं है, तो किस तरीके से बनाते हैं। ड्रॉ ए लाइन L एंड चूज अ पॉइंट P ऑन इट, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करके पॉइंट P चूज कर लिया इसके अंदर। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं। स्टेप 2, नाउ प्लेस द कंपास एट A, यानी कि कंपासेस जो रहते A के ऊपर आपको रखना है। ड्रॉ एन आर्क टू कट द रे AC एंड AB, जैसा कि AC और AB को पूरी रे किस तरीके से काट रही, कंप्लीट एक बड़ा आर्क आपको ड्रॉ करना है। स्टेप 3, यूज द सेम कंपास सेटिंग टू ड्रॉ एन आर्क विथ P एस सेंटर कटिंग L एंड Q, जैसा कि आप देख सक रहे हैं। सेम आपको कंपास का यूज़ करना है, यूज़ करके आपको कट करना है P के सेंटर से। ठीक है, कट करने के बाद LQ हमको फाइंड हो रहा है।
स्टेप 4 में सेट योर कंपास विद BC, BC से फिर आपका कंपास को सेट करिए एज द रेडियस, प्लेस द कंपास पॉइंटर एट Q एंड ड्रॉ एन आर्क टू कट द एग्जिस्टिंग आर्क एट R। तो ये आपका यानी कि स्टेप 5 हो गया। स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 आप देख सकते हैं, जॉइन PR, दिस गिव्स अस एंगल RPQ, इट हैज़ द सेम मेजर एज द एंगल CAB, दिस मीन्स एंगल QPR हैज सेम मेजर एज द एंगल BAC। तो ये जो एंगल्स आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स 6 स्टेप्स बताए गए, इसमें ये बताया जा रहा है कि दो एंगल्स हैं जो एक दूसरे को यानी कि मिरर जैसा एक्ट करते, वो बताया जा रहा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर और एक हो गया। नेक्स्ट हम कुछ और बात कर लेंगे इसी से रिलेटेड, जैसा कि हमारी 13.4 एक्सरसाइज है, इसी से रिलेटेड है आपको कि एंगल्स किस तरीके से फॉर्म करना है। आइदर इट में भी ABC हो सकता है या फिर एंगल PQR हो सकता, एक्सेट्रा। एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। नाउ एक्सरसाइज नंबर 13.5 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 13.5 को अगर आपको करने के लिए फ्यू एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है आपको इसी पे गौर करना है। करने के बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 13.5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पार्शियल ज्योमेट्री जो चैप्टर, नॉट पार्शियल ज्योमेट्री, इट इज़ एन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो इस चैप्टर को लेके मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस चैप्टर इज यू नीड टू कीप द ज्योमेट्री बॉक्स व्हाइल यू आर लर्निंग एंड लाइक दिस चैप्टर। सेकेंड थिंग, you need to go through with maximum like practical, you need to draw the drawings, drawing and third thing is you can draw the thing when you knows। आप कब ड्रॉ कर सकते हैं कौन सी भी चीज़, जब आपको समझने आता। तो इसके लिए आप दो काम करिए, मेरे लेक्चर्स सुनिए, दूसरा आपकी रीडर रिफर कीजिए। रीडर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम द रीडर। सो now our practical geometry chapter is end with the exercise number 13.5. so that's all about our today's session and today's class. So in our next session we will going to end our maths class 6 in few sessions. In next chapter our maths is completely going to end. So I am Sayyid Rashid here taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel name as Ahlebeth High School and Junior College. Make sure maintain notes, practice and practice. Have a great time. Take care. Thank you.